No. Why? Big part no. Just no. खान्स के बिना बॉलीवुड चल सकता है आगे? क्या 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 है इसमें? मैं 50-50 दे दूंगा। Are you crazy? Like this Khans is like the main essence of Bollywood. नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। भाई खान्स की जब बात आती है तो हर घर में डांस और स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, या फिर मेरे नाम है तू, या फिर दंगल दंगल। तो भाई ऐसे में अब सवाल ये आता है कि क्या लोगों के मन में कुछ ऐसा चल रहा है? तो सवाल ये है कि क्या खान्स के बिना बॉलीवुड चल सकता है या नहीं? तो चलिए फैंस लोगों से जानते हैं कि उनकी इस बात पे क्या राय। तो फिर चलिए मेरे साथ। बट मैं ये बताओ कि आप बॉलीवुड जो है वो बिना खान्स के इमेजिन कर सकते हो? या बिना खान्स की इमेजिन किया जा सकता है, बिकॉज we all are witnessing a revolution in Bollywood nowadays. So what is happening, people are no more that starstruck as they used to be. Yeah. So अभी क्या हो रहा है कि they want to see, उनको raw talent चाहिए, उनको acting चाहिए, they want a good story, they want to see good art on, basically that is. I'm not saying that Khans don't do that, but basically we have actors like Nawazuddin Siddiqui, Rajkumar Rao and all. They are like the budding, the emerging, you can say, future superstars right now. So yeah, I think we can imagine a Bollywood without Khans. So जिस तरह से 2018 में तीनों खान्स की फिल्म्स फ्लॉप हुई है, so क्या इस वजह से उन्हें ये जज किया जा रहा है? बिकॉज 30 साल के करियर में जिस तरह की उन्होंने फिल्में दी हैं, so अगर हम उन्हें इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आई थिंक खान्स की वजह से बॉलीवुड चल रहा है। so अगर आप ये कहते हैं तो इसका रीज़न क्या, मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी। No, I don't think, even they are like amazing actors. Okay, so ये जो 2018 में इनकी सब फिल्में फ्लॉप गई है, I don't think उसके ऊपर से मतलब you should judge an actor. Okay, I'm just saying that yes, there is a possibility that Bollywood is not just they are not the pillars of Bollywood. वो सिर्फ Bollywood उनके ऊपर ही नहीं टिका हुआ है. There are other people who are hardworking. They are putting their honest efforts and yes, they are doing an absolutely remarkable job. So that is the thing. क्या बात है। तो जिस तरह से आपने बोला कि कॉन्सेप्ट्स पे आजकल फिल्में चल रही है, बॉलीवुड जो है वो कॉन्सेप्ट्स पे, तो 2018 और 2017 ये दोनों का मैं एक एग्जांपल आपसे मांगना चाहूँगी कि ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे एंड खान्स के आगे बहुत ज़्यादा लगे आपको? Okay, so firstly, biopics. Okay, for example, you can take Manji, Sanju. Yes. Then we have films like then biopics and all is there. Manji, Badhai Ho, Andhadhun. Yeah. Okay, so these three. Yeah. Rajkumar Rao, Udi. Okay, we have मतलब art films है, but they are becoming commercial nowadays. So लोगों को पसंद आ रही है आजकल आर्ट फिल्मों को देखना, उनको पसंद है, उनको अच्छा लग रहा है. They don't want anymore that एक millions of cars blasting and going everywhere and all. उनको एक सिंपल अच्छी एक स्टोरी दे दो with a proper beginning and an ending, connected है. That's it. So people आजकल लोगों को वो पसंद आ रहा है and लोग अपने पैसे खर्च करके वो देखने जा रहे हैं. बिल्कुल. चलिए, थैंक यू सो मच अग्नव. My dad actually is not a fan of Bollywood, तो उनको खान्स बिल्कुल नहीं पसंद है. But for me it's different. For me and my brother, we both are really big fan of Khans, especially Shah Rukh Khan. He's so hot. He was so hot. So yeah, we go on first day, first show to watch his movies and etc. etc. तो यहीं पर ही मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या बॉलीवुड बिना खान्स के इमेजिन किया जा सकता है? Are you kidding me? No. No. Why? Big part no. Just no, because I guess Bollywood has its base after Khans only. लेकिन जिस तरह से उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही, लाइक शाहरुख खान की तो फैंस, आई थिंक अभी हमें ये भी याद नहीं है कि उनकी हिट फिल्म जो लास्ट रही है वो कौन सी रही है. सो एंड सलमान खान ब्रांड नेम चल रहा है, आमिर खान अलग, थग्स ऑफ हिंदुस्तान इतना फ्लॉप गए. तो ये सब देखने के बाद में भी आपको ऐसा लगता है? Everybody has their bad times. We have a share of bad times, so yeah, it's their bad time, but still it's good. I support Khans, you know. So क्या याद आता है वो वक्त जब लगता है कि हाँ खान्स की अब भी फिल्म अगर फ्लॉप हुई है तो लास्ट जो 30 सालों से हम उनकी फिल्में देख रहे हैं, लाइक DDLJ हो गया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ है, अंदाज अपना अपना, तो ये फिल्में कितनी बार याद आती है और कितनी घरों में देखी जाती है? Movies flop हो रही हैं फिर भी तो 100 करोड़ क्लब में जा रही हैं, so how does it really matter? This is the true line. So thank you so much. Thank you.
congrats to you actually. थैंक यू सो मच। कुणाल, बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कुणाल, ये बताइए कि जब भी खान्स की फिल्म्स आती हैं तो सबसे पहले काम क्या होता है, या फिर आप फर्स्ट शो देखने जाते हो हमेशा? ऑब्वियसली सलमान भाई है, और कोई उनकी फिल्म फर्स्ट शो कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि सलमान भाई की जो फिल्म आती है सबसे ज़्यादा चीखने चिल्लाने का मज़ा आता है उस फिल्म में। और भाई का अगर शर्टलेस सीन हो तो होए क्या बताऊँ मैं अभी। क्या बात है। तो यहीं पे एक सवाल मेरे मतलब है, हम लोग जनता से जान रहे हैं कि क्या खान्स के बिना बॉलीवुड को इमेजिन किया जा सकता है कि खान्स के बिना बॉलीवुड चल सकता है आगे? क्या 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 एकता कपूर वाले एक्सप्रेशन हो गए। लेकिन बात यह है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खान्स की जो फिल्में हैं बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा कमाती है। शाहरुख की फिल्में ओवरसीज़ बहुत कमाती है, और शाहरुख की वजह से नाम है बॉलीवुड का, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे तो बाकी लोगों को कोई जानता नहीं है, शाहरुख खान को ही सब लोग पहचानते हैं, जानते हैं। और उनके जैसा रोमांस आज तक किसी ने किया नहीं है बॉलीवुड में। तो बस यही कहूँगा कि आई लव यू शाहरुख भाई, और ऐसे ही काम करते रहिए आप, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे कि आपने ये कहा कि उनके जैसा रोमांस किसी ने नहीं किया है, तो मैं यहीं पे पूछना चाहूँगी इमरान हाशमी के बारे में आपका क्या कहना है? इमरान हाशमी एक बैड बॉय वाले कैरेक्टर में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई फिल्में आई नहीं है जिसकी वजह से मैं कह सकूं कि अच्छा कुछ कर रहे हैं इंडस्ट्री में। लेकिन हाँ, बैड बॉय वाली इमेज जो है उनकी वो बहुत ज़बरदस्त है। क्या बात है। तो जिस तरीके से 2018 में तीनों खान्स की फिल्म फ्लॉप्स रही हैं, तो क्या आप नहीं मानते कि शायद जनता का उनके ऊपर से उनसे हट रहे हैं, या उनका एरा ख़त्म हो रहा है और शायद नए लोगों को अच्छे अच्छे चांसेस और कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं? यही बात है कि टाइम तो नहीं ख़त्म हुआ उनका, कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं पहुंच रहे। अगर अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर वो काम करें, अच्छी फिल्में करें, तो ऑब्वियसली लोग तो देखने जाती है, क्योंकि उन लोगों की फिल्में बुरी होने के बावजूद 200 करोड़ अभी रेस 3 आई थी। पिक्चर चाहे कैसी भी हो, सलमान भाई के नाम पे उसने बिजनेस तो बहुत अच्छा किया है। 200 करोड़ पार हो गई है, और ये छोटी बात नहीं होती कि तुम्हारे पास एक अच्छी स्टोरी नहीं है, लेकिन स्टार के दम पर ऑडियंस आपको देखने आ रही है, थिएटर तक आ रही है देखने। और बाकी बात रही कि बड़े बजट की जो फिल्म होती है, जैसे थग्स हो गई, तो वो फ्लॉप हुई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी बजट की थी। कमाई तो वो भी फिल्म है, लेकिन उतना नहीं कमा पाई। और अच्छे कॉन्सेप्ट हो तो फिल्में तो चलती है। अभी उरी अटैक जो फिल्म आई है, हालांकि कम बजट की, लेकिन चल गई क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है। तो खान्स का टाइम नहीं गया है, बस उनको एक अच्छी स्टोरी चाहिए, और वो ज़रूर लेके आएंगे बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है। तो भारत फिल्म आने वाली है बहुत ही जल्द, क्या कहना है, कितने एक्साइटेड है, कितना क्रेजीनेस है उस फिल्म के लिए? बहुत है। भारत का जो अभी तक ज़्यादा कुछ आया नहीं है, लेकिन भारत के बारे में ऑलरेडी सब लोग बात कर रहे हैं कि भारत आएगी, सलमान खान की फिल्म है, और वो तो फर्स्ट डे ही ऐसा रिकॉर्ड सेट करेगी कि कोई तोड़ नहीं पाएगा जल्दी से, मुझे तो यही लगता है। इसे कहते हैं फैंस का कॉन्फिडेंस अपने एक्टर के लिए या अपने भाई आइडल्स के लिए। सो थैंक यू सो मच कुणाल हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच रिदम। Are you crazy? Like this Khans is like the main essence of Bollywood. इनके बिना बॉलीवुड चलेगा ही नहीं, according to me. Oh my God. So मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों भाई, इतने नए नए हीरोज आ रहे हैं, आयुष्मान खुराना है, विकी कौशल है, रणवीर सिंह है, बट अब पुराने हीरोज को देख लो, सलमान खान का फैन फॉलोइंग देख लो, एंड सी DDLJ, द मूवी सिंस 30 इयर्स अभी भी चल रहा है। सो आई थिंक खान्स आर द मेन पीपल, विदाउट खान्स नहीं चलेगा ये, मेरे लिए नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। एंड सो मेनी फैंस ना जितना फॉलो कर रहे हैं इनको, सो मेनी फिल्म्स वेयर सिर्फ सलमान खान को देखने के लिए लोग मूवी में जाते, थिएटर में जाते थे। दे डोंट केयर अबाउट द मूवी, द स्टोरी, द प्लॉट लाइन, कुछ नहीं। मेरा हीरो है, मैं उसकी फैन हूँ, सो आई विल गो। लेकिन जिस तरह से 2018 में तीनों खान्स की फिल्म जो है वो फ्लॉप गई है, एक भी फिल्म जो है कह दे तो पूरा 2018 खान्स के लिए अच्छा नहीं रहा, तो आपको नहीं लगता कि अब खान्स जो खत्म हो रहा है एरा उनका? 3 फिल्म्स फ्लॉप हुए, उसके पहले जो उनका हुआ था वो भी तो नोटिस करना चाहिए। आई थिंक एवरीथिंग हैज अ ड्रॉप बैक, राइट? सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज बोथ, बट आई थिंक मसाला है वो बॉलीवुड का। क्या बात है। सो थैंक यू सो मच नेहा। थैंक यू सो मच। इसमें मैं 50-50 दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि कांस के बिना चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है। आपको ऐसा क्यों लगता है, और आप न्यूट्रल मतलब 50-50 पे क्यों हो, 75 या 25 क्यों नहीं? क्योंकि इसकी ऑडियंस अलग है। कांस की जो मूवी होती है सब्जेक्टिव होती है, बहुत सारा मतलब उसमें रियलिस्टिक पे बिलीव करते जो भी स्क्रिप्ट है, जैसे कि वहाँ पे आपको आइटम सॉन्ग नहीं मिलेगा, काफ़ी सारे वहाँ पे मतलब डार्क सीक्रेट्स दिखाई जाएगी, बहुत सारी चीज़ें जो डे टू डे नॉर्मल एक ऑडियंस फील नहीं कर पाएगी अच्छी तरह से, बिकॉज सब लोग जो भी आते हैं एंजॉय करने आते हैं, वहाँ पे आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। एंड सेकेंड थिंग, वहाँ की जो आर्टिस्ट होगी जिसमें कांस में जो भी वो लोग लेते हैं वो बहुत ही मतलब एक थिएटरिकल हो, जो भी मतलब टूवर्ड्स एक
एक्टिंग बेस पे अगर आप देखा जाए तो बहुत ही मतलब घुसे हुए रहते हैं, तो वहाँ पे कोई स्टार नहीं। आपको पता होगा कि एक एक्टर और एक स्टार क्या होता है, दीज टू वर्ड्स आर डिफरेंट एक्चुअली, ठीक है। तो कमर्शियल में आपको मिलेगा सब मसाला, जहाँ पे आप लॉजिकली थिंक भी नहीं कर सकते, काफ़ी सारी चीज़ें उड़ेंगे, काफ़ी सारे गिरेंगे, तो ये दो चीज़ें हैं। तो इनकी ऑडियंस अलग है, सो कांस चल भी सकती है, मतलब बॉलीवुड चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है। लेकिन जिस तरह से 2018 तीनों खान्स के लिए रहा है वो काफ़ी गिरा हुआ रहा है, तीनों की फिल्में फ्लॉप हो गई है, तो क्या इस नज़रिए से इस चीज़ को जज किया जा रहा है? देखो इन्होंने एक्चुअली ना ये अभी कांस तो अभी हाल ही में ये सब कुछ मतलब हाइप हुआ है, बिकॉज अभी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को ना ज़्यादा प्रोड्यूसर्स मिलने लगे, फाइनेंसर मिलने लगे, तो पिक्चर है ना फेस्टिवल जा पा रही है। लेकिन बॉलीवुड में जो कांस है ना, ये बिना कांस और तब से चल रहा है, तो इनकी कोई भी ना मतलब इनका फुल स्टॉप नहीं बोल सकते। ये तब से चल रहे हैं जहाँ पे आप लोगों ने कांस के बारे में सुना नहीं होगा, तो वो एक चीज़ है, फर्स्ट पॉइंट। अभी ये जो चल रही है तभी भी इनका कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, इनका काम चलते रहेगा, बिकॉज इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। बट हाँ, कांस के आने की वजह से एक हमारी फिल्म की जो एक दिखाने का तरीका है ना, पूरा चेंज हो गया है। अब देखोगे कोई भी ऑस्कर के लिए कोई सोच नहीं रहा था, लेकिन आज हर फिल्म डायरेक्टर हैज़ दैट कॉन्फिडेंस लेवल कि ऐसे एक दिन मैं पहुंचूंगा उधर, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल्स एंड बिकॉज ऑफ द ऑडियंस दे आर गेटिंग राइट नाउ। बिकॉज एक कांस का जब वो कांस करके नहीं बोल सकता, देयर आर सम मेनी गुड फिल्म फेस्टिवल्स, जब उनका थप्पा लग जाता है, ऐसे कुछ 40 से 50% आपको ऑडियंस मिलेंगे जो देखने आएंगे, सिर्फ और सिर्फ वो सिलेक्ट हुआ है करके, तो ये एक चीज़ है। जैसे कि जिस तरह से आज के समय में कॉन्सेप्ट ज़्यादा चल रहे हैं, चाहे फिर वो कमर्शियल हीरोज कर रहे हो, लेकिन क्या लगता है कि ब्रांड पर फिल्में चल रही है या कॉन्सेप्ट पे चल रही है? कॉन्सेप्ट तो मैं बोलूँगा ही, बिकॉज अभी बहुत ही होशियार हो चुके हैं ऑडियंस, बिकॉज सबको ना अभी लव स्टोरी से बोरिंग होने लगा है। अभी वो लोग कॉन्सेप्ट, और ना ऐसे होता तो फिर ये टॉयलेट, पैडमैन, ये चीज़ तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की ही है, लेकिन फिर भी इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अभी लोगों को ना कॉन्सेप्ट चाहिए, बट हाँ वही घुमा फिरा के वही आता है कि लेकिन ये बहुत चलेगी नहीं। आपको कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड में एक कॉमेडी, एक रोहित शेट्टी टाइप आपको मूवी चाहिए रहेगी, क्योंकि आप रोज़ भर माँ बाप से लड़ाई, गर्लफ्रेंड से लड़ाई, सबसे लड़ाई करने के बाद एक हंसने वाली चीज़ देखना पसंद करोगे, तो ये भी चलनी चाहिए, वो भी चलनी चाहिए। हाँ, तो इतना ही है। वैसे तो इसका डिबेट कभी ख़त्म नहीं होगा, बहुत बड़ा। थैंक यू सो मच सुनील जी हमसे बात करने। थैंक यू। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि बॉलीवुड बिना खान्स के चल सकता है? आर यू क्रेजी? क्यों भाई? खान्स इज द स्टार ऑफ सुपरस्टार ऑफ द बॉलीवुड। सो आपका कहना मतलब ये है कि वो पिलर्स हैं बॉलीवुड के? यस। ओह माय गॉड, क्यों उनकी 2018 में तीनों फिल्म फ्लॉप हुई हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब उनका एरा खत्म हो रहा है? 3 फिल्म से कुछ नहीं होता, फिल्म्स तो अभी बनेंगी, तो फिर आगे हिट भी होंगी। क्या बात है, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, वो भी अपने स्टार के लिए। सो आपको उनकी आने वाली फिल्में पता है, तो कौन सी फिल्म के लिए आप क्रेजी है अभी? सलमान खान की फिल्म भारत आ रही है, तो उसके लिए आप कितना क्रेजी है? बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ, क्योंकि उसमें भी सलमान, वो भी हिट होगी, वो भी हर हिट फिल्म। होगी, कंफर्म हिट Yes. होगी। आपको कैसे पता? जस्ट इमेजिन, बाकी सब फिल्मों की वजह से। ओह माय गॉड, चलो, सो थैंक यू सो मच ईशान, थैंक यू सो मच।